Honorable Minister. महोदय उत्तर सभा पटल पर रखा है. Supplementary one, Shri R. Girirajan. Thank you very much. Thank you, Honorable Chairman, sir. Tamil Nadu has 10 major fishing harbors, 4 medium fishing harbors, 83 fish landing centers, and 224 fish landing points with 5,440 mechanized fishing boats and 44,487 traditional crafts. Tamil Nadu produced more than 6 lakh tons of marine fish and export 1.3 lakh tons of marine products, earning a foreign exchange of rupees 7,000 crore annually. This can be increased substantially if the Union government provide both financial and technical support to venture deep sea fishing in the Bay of Bengal. Sir, through you, I would like to know from the Honourable Minister the total amount released by Union government for incentivizing deep sea fishing and for the acquisition of deep sea fishing vessels to increase the capacity production of fish and marine products and the income of fishermen in Tamil Nadu. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है सही बात है कि तमिलनाडु में मैरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग के स्कोप है, लेकिन जो फिशिंग में नंबर 1 5 टॉप फिशिंग स्टेट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जितने इन्वेस्टमेंट और जितनी स्वीकृति दी गई है अन्य राज्यों में, उसकी तुलना में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा राशि स्वीकृत किया गया है। 2008 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो स्वीकृति है वह राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र और राज्य के भागीदारी के आधार पर स्वीकृत की जाती है और राज्य सरकार के माध्यम से आप जवाब तो सुनिए पहले। Don't, honorable member, no. R. Girirajan ji, let the honorable minister complete. No. Okay. Point taken. Honorable minister, the member is not having problem with you. The member is having problem with translation. So your reply is being well taken so far, but he has to understand what you are speaking. Yes, तो और उसके अलावा इसके अलावा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तमिलनाडु की योजनाएं स्वीकृत की गई। इसके पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, पहला ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति तमिलनाडु को दी गई थी। उसके अलावा कई वेसल्स और जो चर्चा इन्होंने की हमने स्वीकृत किया है तमिलनाडु की। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगर राज्य सरकार की और भी कोई योजना प्राप्त होगी वहां के मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए और जो PMMSY के गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के तहत अगर वो योजनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार उसको बढ़ाने का काम कर रही है। Before I call the honorable member for second supplementary, the secretariat takes due care and we normally seek participation and assistance of members to so indicate in advance. But we will be more accurate and careful in taking note of this. Supplementary number 2, Shri Girirajan. Sir, we'll update the mechanism. Sir, at present the government is providing rupees 4,500 for fishermen during the lean period when sea fishing is totally banned. This has to be increased due to price rise and high cost of living in the recent years. Sir, whether the union government give any assurance to fishermen in the country to increase the financial support from the 4,500 to 9,000
during the lean period and increase the insurance cover to rupees 10 lakhs for fishermen in case of any accidents and loss of life. Honorable Minister. सभापति महोदय, जैसा मैंने आपको माननीय सदस्य ने पूछा है, लीन पीरियड में हम लोग 4,500 रुपये प्रत्येक मछुआरा परिवार को देते हैं। उस बंद की अवधि में जब मछली पालन का बंद रहता है, उस अवधि में उनके जीवन यापन के लिए 4500 रुपया की सहायता दी जाती है। वह सिर्फ केंद्र सरकार की का राशि नहीं है, उसमें 1500 रुपये राज्य सरकार का होता है, 1500 रुपये केंद्र सरकार देती है और 1500 रुपया उस मछुआरे परिवार का कंट्रीब्यूशन होता है और तीनों को मिला के 4500 रुपये उनको दिया जाता है। लेकिन बाकी जब होंगे, आज की तारीख में इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उसके पहले मैं एक बात सिर्फ पहले के प्रश्न में माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु को जो स्वीकृत की गई है पीएमएमएसवाई की योजनाएं, उसमें आज भी 32 करोड़ लगभग 32 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तमिलनाडु सरकार के यहां पेंडिंग है, जो तमिलनाडु सरकार ने नहीं भेजा।